Very warm welcome to the Dialysis Technology Update 2024, which will be held on 7th of April, this Sunday, at the auditorium of AIMS Nagpur. So, very warm welcome to all of you. This is a pre-workshop learning video. I am Dr. Amol Bhavani, Assistant Professor in the Department of Nephrology, AIMS Nagpur. We'll be teaching plasmapheresis. So the plasmapheresis part will be divided into total three parts. Plasmapheresis. In first part, we'll learn about what are the indications of plasmapheresis, what is the mechanism of action. In second part, we will be learning about what are the access required for plasmapheresis, what are the different types of machines, how we anticoagulate during the plasmapheresis, and the third and last final part will see the complications, how to manage that complication, how to write the prescriptions, how to monitor the plasmapheresis therapy basically. So आप सभी का स्वागत है डायलिसिस टेक्नोलॉजी अपडेट 2024 में। अभी जो हम देख रहे हैं वो प्लाज्माफेरेसिस के बारे में सीख रहे हैं। सो इस प्लाज्माफेरेसिस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, 2 और 3। आगे जो भी टीचिंग हम करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश मिला के करेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से इसका समझ आए। सो नाउ वी विल स्टार्ट द प्लाज्माफेरेसिस बेसिक पार्ट 1. So what are the learning objectives? Definitions of the plasmapheresis in this session. Indications of plasmapheresis. What are the indications of plasmapheresis? What is the mechanism of actions of the plasmapheresis? What are the factors which affect the plasma exchange, that is the plasmapheresis? The common indications and use in the kidney disease. So we'll be learning these objectives in today's video. So what is the definition of plasmapheresis? So firstly, we'll have to see what is the mean by therapeutic apheresis. Therapeutic apheresis refer to the group of extracorporeal procedures in which the blood separation technology is used to remove the abnormal blood cells and or plasma constituent. इसका मतलब यह है कि ऐसी थेरेपी जिसमें हम ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स जैसे रहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। ब्लड दो पार्ट से बनता है, प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रहते हैं। तो हर एक कंपोनेंट ब्लड का सेपरेट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग प्लाज्मा भी सेपरेट किया जा सकता है। तो ये जो सारे थेरेपीज होती है उसको हम थेराप्यूटिक अफेरेसिस बोलते हैं। सो थेराप्यूटिक अफेरेसिस कंसिस्ट ऑफ प्लाज्माफेरेसिस व्हेन यू रिमूव प्लाज्मा. It also consists of leukapheresis when it removed WBCs. It also consists of erythrocytopheresis when you remove RBCs. And when you remove platelet, it is called as thrombocytopheresis. So आप जो कंपोनेंट निकालना चाहते हैं उसके ऊपर से ही उसका नॉमेनक्लेचर है। प्लाज्माफेरेसिस को हम थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज और टीपीई करके भी बोलते हैं, और प्लाज्मा एक्सचेंज ये भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो टर्म्स आर इंटरचेंजेबल, मीनिंग इज द सेम. So the therapeutic apheresis include plasmapheresis and therapeutic plasma exchange. Therapeutic apheresis एक बड़ी टर्म है, उसमें plasmapheresis और plasma exchange आता है. Apheresis is the Greek origin word, means a take away. That is, therefore the plasmapheresis therefore means removal of the plasma. It is as simple as that. So प्लाज्मा को निकालना, इसको प्लाज्माफेरेसिस हम बोल सकते हैं. Plasmapheresis for kidney disease. The vast majority of renal indication of plasma exchange are related to the immunoglobulin removal. So what is the immunoglobulins? The immunoglobulins are the especially of IgG class and which have relatively long lifetime. Thus, in antibody mediated disease, significant amount of antibody may persist in circulation even after the cessation of antibody production. होता यह है कि हम एंटीबॉडी मेडिएटेड डिसीज जैसे एंटी जीबीएम है, एंकावास्कुलाइटिस है, ये जो आपने बहुत बार नाम सुने होंगे बीमारी के, तो उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और वो सर्टन किडनी के पार्ट के विरुद्ध एक्ट करते हैं. एक्ट अगेंस्ट द सम पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस. फॉर एग्जांपल इन एंटी जीबीएम डिसीज एक्ट अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन. So we'll have to remove these antibodies. So this is the basis for plasmapheresis. The plasma exchange aim to significantly reduce circulating antibodies because other treatment will take time to act. For example, if we give steroid or cyclophosphamide, so it will take its own time to remove. For example, हम किसी को steroid देते हैं या cyclophosphamide देते हैं तो उसको अपना एक समय लगता है जिसको इफेक्ट आने के लिए.
अगर हमें कोई चीज जल्दी करनी है, जल्दी ही निकालना है, तो प्लाज्माफेरेसिस एक थेरेपी है, वो तभी के तभी उस एंटीबॉडीज के लोड को निकाल सकता है. सो दैट्स व्हाई द प्लाज्माफेरेसिस, द action will start immediately after plasmapheresis. So plasma constitutes of 55% of circulating blood volume. Other 45 is form elements such as RBC, WBC, platelet. तो प्लाज्मा 55% रहता है ब्लड का, और 45% फॉर्म एलिमेंट्स रहते हैं, जिसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब रहता है. तो ये 55% का जो प्लाज्मा रहता है, उसमें क्या रहता है? उसमें वाटर्स, अल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, विच इज वी आर रिमूविंग, antibodies, hormones, minerals, drugs, etc. So indications of therapeutic apheresis, or you can say of plasmapheresis. So according to American Society of Apheresis 2019, there are certain indication of plasmapheresis. That indication it itself divided into 4 categories. So 4 categories में उस indications को divide किया गया है. जैसे कि कैटेगरी क्या है? जैसे कि कैटेगरी 1, 2, 3 और 4. कैटेगरी का 1 का मतलब है इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी, either as a primary standard of treatment or in conjunction with the other mode of treatment. या तो इसको एकमात्र थेरेपी है के स्वरूप में दिया जाता है, या तो अदर थेरेपी के साथ में दिया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है. कुछ बीमारियां हैं उसमें इसको फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंटी-जीबीएम डिसीज. डिसऑर्डर फॉर विच द सेकंड क्लास जो है, डिसऑर्डर फॉर विच द अपहेरेसिस एक्सेप्ट एज अ सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी. अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी सक्सेस नहीं होता है या पूरी तरह से बीमारी को ठीक नहीं करता है, तो हम इसको सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी यूज कर सकते हैं. थर्ड इज द रोल, ऑप्टिमल रोल ऑफ अपहेरेसिस थेरेपी इज नॉट एस्टेब्लिश. पूरी तरह से उस बीमारी के लिए उस प्लाज्माफेरेसिस का रोल एस्टेब्लिश नहीं है, बट आप एज ए इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट की डिसीजन, केस टू केस बेसिस डिसीजन लिया जा सकता है. अगर हमें ये लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ज्यादा है, तो हम उसको दे सकते हैं. फोर्थ ऐसी डिसऑर्डर जिसमें देना बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है या तो फिर हार्मफुल है. सो ये 4 कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया गया है प्लाज्माफेरेसिस के इंडिकेशंस को. सो प्लाज्माफेरेसिस हम किडनी के बीमारियों के साथ में अदर बीमारियों के लिए भी यूज कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि खाली किडनी की बीमारी से ही के लिए ही प्लाज्माफेरेसिस होता है. देयर आर अदर डिसीजेस अदर देन द किडनी डिसीज. फॉर एग्जांपल गुलेनबेरी सिंड्रोम है, जो सीएनएस का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है ना. तो माइस्थीनिया ग्रेविस है, तो ये न्यूरोलॉजिकल चीजें हैं, उसमें भी हम प्लाज्माफेरेसिस करते हैं. सो हमें प्लाज्माफेरेसिस को एज अ थेरेपी देखना है. क्या है कैटेगरी 1 इंडिकेशंस? अब ये कैटेगरी 1 इंडिकेशन में इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जिसको बोला जाता है, कि ये पहली ही लाइन है, पहली पंक्ति की थेरेपी है. इसमें कुछ रिनल डिसीजेस आएंगे, कुछ नॉन रिनल डिसीज है. जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, गुड पास्चर सिंड्रोम मतलब एंटी-जीबीएम डिसीज, टीटीपी एचयूएस, अटिपिकल एचयूएस, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये किडनी रिलेटेड डिसीज है. सीवियर क्रायोग्लोबुलिमिया, पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम विद डिफ्यूज अल्वेओलर हेमरेज, मतलब लंग्स में हेमरेज हो गया, एंटीबॉडी मेडिएटेड रीनल ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांट, hyperviscosity syndrome, sickle cell disease, for example in that we can do RBC exchange. तो खराब RBC है उसको हम निकाल सकते हैं. acute demyelinating polyneuropathy like गुलेनबेरी सिंड्रोम और GBS जिसको बोलते हैं. हाइपरल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकेमिया में, फॉर एग्जांपल WBC बहुत ही ज्यादा बनते हैं, तो ल्यूकोसाइटाफेरेसिस हम उसको निकाल सकते हैं. तो वो भी एक प्रकार है, हमने देखा है. थेरापेटिक अपहेरेसिस का ये भी एक प्रकार है. जैसे प्लाज्मा निकालते हैं, वैसे WBC भी निकली जा सकती है. माइस्थीनिया ग्रेविस क्राइसिस, हमने पहले भी इसके बारे में बताया है कि माइस्थीनिया में भी प्लाज्माफेरेसिस का यूज होता है एंटीबॉडीज निकालने के लिए. थ्रोम्बोसाइटोसिस फॉर एग्जांपल, अगर प्लेटलेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उसके लिए हम प्लाज्माफेरेसिस यूज कर सकते हैं. तो नाउ अभी किडनी के लिए क्या क्या इंडिकेशन है प्लाज्माफेरेसिस के? तो आपको पता है कि जो कॉमन डिसीजेस है, इसको एंटी-जीबीएम डिसीज, लुपस नेफ्राइटिस है, जिसमें फॉर एग्जांपल डिफ्यूज अल्वियोलर हेमरेज, मतलब लुपस नेफ्राइटिस अगर अल्वियोलर हेमरेज के साथ में इन्वॉल्व होता है, या फिर वास्कुलाइटिस होता है, या सीएनएस मतलब ब्रेन में इन्वॉल्व हो जाता है, या एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, ये सब चीजें अगर लुपस नेफ्राइटिस के साथ में होती है, तो प्लाज्माफेरेसिस इंडिकेटेड है. मल्टीपल माइलोमा में अगर किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, लाइक कास्ट नेफ्रोपैथी, क्रायोग्लोबुलिमिया, एफएचजीएस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, अगर खासकर वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में आता है, जिसको बोलते हैं रिकरेंट डिसीज, मतलब बाद में बार बार आने वाली डिसीज, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं. थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, इसमें अटिपिकल एचयूएस आता है और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा आता है. ये 2 प्रकार की बीमारी आती है, उसके अपने अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है, वो बीमारी की पैथोलॉजी अलग अलग है. उसमें भी प्लाज्माफेरेसिस का बड़ा रोल है.
एंका एसोसिएटेड वास्कुलाइटिस, लाइक कई वास्कुलाइटिस है लेकिन लंग्स भी इन्वॉल्व है, साथ साथ में ब्लीडिंग हो रही है लंग्स में, डिफ्यूज अल्वियोलर हेमरेज हो रहा है, एबीओ इनकम्पेटिबल रिनल ट्रांसप्लांट, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करना है मतलब ब्लड ग्रुप अलग है, फॉर एग्जांपल बी वाला ए को दे रहा है या ए वाला बी को दे रहा है, इस केस में जो रेसिपिएंट है उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज रहती है डोनर के ब्लड ग्रुप के विरुद्ध एंटीबॉडी है, उसको निकाला जाता है ट्रांसप्लांट के पहले, उसको कम कर दिया जाता है ताकि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। दूसरा डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल, मतलब ऐसे मरीज है जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज है, जिसमें हम अगर किडनी लगा दे तो वो चांसेस ज्यादा है कि वो रिजेक्ट हो जाए, तो किडनी लगाने के पहले वो एंटीबॉडी निकालने के लिए भी प्लाज्माफेरेसिस का यूज होता है। दूसरा एलोग्राफ रिजेक्शन, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट किया और अभी रिजेक्ट हो गई किडनी, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड रिजेक्शन, उसमें भी प्लाज्माफेरेसिस का अग्रण्य रोल है, मतलब प्रथम रोल है, फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी मानी जाती है। तो ये हमने देखा है। अभी हर डिसीज का एक अलग तरह का थेरेपी होता है, एवरी डिसीज विल हैव इट्स different type of prescription. For example, in some disease we'll have to do a daily plasmapheresis. In other disease we'll have to do a alternate day plasmapheresis. For example, in some disease we'll have to give a albumin as a replacement solution. In other we'll have to give a plasma as a replacement solution. So different diseases will have a different prescription of the plasmapheresis, and that prescription will have a basis. मतलब उसका कुछ एक बेस होगा, उसके कारण उसको हम अलग अलग तरीके से हर बीमारी को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब प्लाज्माफेरेसिस ही देते हैं बट अलग अलग स्वरूप में देते, किसी को 14 दिन तक देना पड़ेगा तो किसी को 5 दिन तक देना पड़ेगा, तो ये बीमारी के नेचर के ऊपर अवलंबन, बीमारी के नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल इन एंटीजीबीएम डिसीज हमें विल हैव टू गिव डेली एक्सचेंज ऑफ 1.5 to 2 वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फॉर 14 डेज और टिल द एंटीजीबीएम एंटीबॉडी लेवल नॉर्मलाइज, और अगर उसको पल्मोनरी हिमरेज है टिल द पल्मोनरी हिमरेज सबसाइड, तब तक हमें उसका प्लाज्माफेरेसिस करना पड़ेगा। सो कभी कभी एंटीजीबीएम डिसीज में प्लाज्मा देखिए कुछ फायदा नहीं रहता, फॉर एग्जांपल पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे डिपेंड है, उसको पल्मोनरी हेमरेज नहीं है और उसके बायोप्सी में अगर हमने किया है तो उसमें बहुत सारा क्रोनिसिटी पाया गया है, मतलब ऐसा लगता है कि बीमारी काफी आगे तक चली गई है, सो उस केस में प्लाज्माफेरेसिस का कोई रोल नहीं रहता है। सो वो बीमारी कौन सी है और उसकी क्या स्टेज है उसके हिसाब से प्लाज्माफेरेसिस का प्रिस्क्रिप्शन ये चेंज होते रहता है। सो इट इज नॉट लाइक कि सबके लिए सेम ही प्रिस्क्रिप्शन रहेगा। सो उसका क्या डिसीज है वो हम आगे पार्ट में जैसे ही हम प्रेजेंटेशन आगे करेंगे उसमें हम देखेंगे। दूसरा है एंकावास्कुलाइटिस, इसमें भी अगर कोई पल्मोनरी हेमरेज होता है और सीवियर किडनी डिसीज है तो हम प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। इस केस में हम अल्टरनेट डे प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं, जैसे एंटीजीबीएम में हम डेली प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं, इसमें हम अल्टरनेट डे प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं और अल्ब्यूमिन को रिप्लेसमेंट फ्लूइड यूज कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी बीमारी में अगर पल्मोनरी हेमरेज होता है तो इस केस में हम अल्ब्यूमिन के साथ साथ प्लाज्मा को भी एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग इस केस में ज्यादा होता है पल्मोनरी हेमरेज में, तो हमें एफएफपी को रिप्लेसमेंट सोल्यूशन करके यूज करना पड़ता है। सो रिप्लेसमेंट सोल्यूशन कौन सा यूज करना है वो डिपेंड रहता है वो बीमारी पे और बीमारी के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी हेमरेज हो रहा है तो हम अल्ब्यूमिन खाली यूज नहीं कर सकते, ओनली अल्ब्यूमिन अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर का लॉस हो जाता है। सो विल हैव टू रिप्लेस सम अमाउंट ऑफ एफएफपी आइदर कंप्लीटली और इन द लेटर पार्ट ऑफ प्लाज्माफेरेसिस। फॉर एग्जांपल हम आखिरी में 2 या 3 प्लाज्मा वॉल्यूम्स प्लाज्मा बैग्स हम दे सकते हैं। सो टिपिकल एचयूएस एंड टीटीपी, इसको थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी करके बोलता है, दिस अ ग्रुप ऑफ डिसीज थ्रोम्बोटिक माइक्रो, इसमें हम डेली प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं 1.5 वॉल्यूम्स, मतलब यहाँ कितना वॉल्यूम देना है उसका कैलकुलेशन हम प्रिस्क्रिप्शन पार्ट में देखेंगे। 1 वॉल्यूम मींस एक प्लाज्मा, दैट इज हमने पहले ही देखा है तो 55% ऑफ द बॉडी टोटल बॉडी में प्लाज्मा होता है और 45% फॉरेन एलिमेंट होते हैं, तो दैट जो 1 वॉल्यूम निकल के आता है कैलकुलेशन के बाद में उसको 1 एक्सचेंज बोलते हैं। 1.5 मींस 1.5 गुना, 2 मींस डबल एक्सचेंज करना है प्लाज्मा। फॉर एग्जांपल किसी का 2 लीटर आता है प्लाज्मा वॉल्यूम तो हमें 1 मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम मतलब 2 लीटर, 1.5 मींस फिर 3 लीटर आ गए, 1.5। सो ये एक्सचेंज हम बाद में सीख लेंगे, जो बाद में जैसे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो अगेन अटिपिकल एचयूएस अगर रहता है तो हमें एफएफपी का यूज करना पड़ता है, बिकॉज देयर आर सम फैक्टर व्हिच इज डेफिशिएंट इन द अटिपिकल एचयूएस एंड टीटीपी। द एफएफपी विल रिप्लेस दैट फैक्टर एंड रिप्लेनिश दैट फैक्टर। सो इस डिसीज में हमें एफएफपी यूज करना पड़ता है, खासकर टीटीपी में जिसको थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा रहता है, उसमें एडम्स 13 नाम का एक मॉलिक्यूल रहता है, उसकी डेफिशिएंसी रहती है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें एफएफपी यूज करना पड़ता है। सो इन दैट केस वी विल नॉट यूज द अल्ब्यूमिन। Similarly, cryoglobulinemia is also an indication of plasmapheresis. So, what is the mechanism of action of plasma exchange? How the plasma exchange work? So, हमने अभी देखा है तो प्लाज्मा एक्सचेंज कैसे काम करता है। रिमूवल ऑफ द एबनॉर्मल सर्कुलेटिंग फैक्टर्स, जो एबनॉर्मल शरीर में सर्कुलेटिंग फैक्टर्स है,
चाहे वो एंटीबॉडी हो लाइक एंटी जीबीएम डिसीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, गुलेनबेरी, एंका वास्कुलाइटिस, उसमें कुछ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज रहते हैं जो कि हार्मफुल टू द किडनीज और हार्मफुल टू द मसल इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, गुलेनबेरी syndrome. So that harmful antibody will be removed. For example, in multiple myeloma or Wallstrom macroglobulinemia, there is a monoclonal proteins. That proteins get excessively produced in the body, so that has to be removed. So उसको remove किया जा सकता है. या फिर सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स रहते हैं लाइक एसएलई है, क्रायोग्लोबुलिन है, उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज है ये, तो उसमें वो इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी को कॉम्प्लेक्स को ही बाहर निकाला जाता है. एलो एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल आरएच एलिमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें वो एलो एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप के विरुद्ध जो एंटीबॉडीज है उसको निकाला जाता है. टॉक्सिक फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल किसी पॉइजनिंग में अगर हम प्लाज्माफेरेसिस कर सकते हैं तो वो हम पॉइजन निकालते हैं. सो एबनॉर्मल सर्कुलेटिंग फैक्टर जो है, चाहे वो एंटीबॉडी हो, चाहे वो मोनोक्लोनल प्रोटीन हो, चाहे वो सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो एलो एंटीबॉडी हो या टॉक्सिक फैक्टर हो, उसको निकाला जाता है. रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर, प्लाज्मा फैक्टर, अभी हमने देखा है कि टीटीपी में एडम्स 13 नाम के फैक्टर की डेफिशिएंसी थी, तो उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए उसको प्लाज्मा देना पड़ता है. सो इन दिस केस रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर. फिर ये दूसरा वाला मैकेनिज्म हो गया. थर्ड इज अदर इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम. और भी क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो इंप्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, removal of the inflammatory mediators like cytokines, complement, shift in the antibody to antigen ratio, resulting in the more soluble form of immune complex, effect on the cellular immunity, so it boosts the immunity. So these are different mechanism of the plasmapheresis or plasma exchange. So now अभी हमें देखना है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द प्लाज्मा एक्सचेंज. वो कौन से फैक्टर है जो प्लाज्मा एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट. सो कॉमन मॉलिक्यूल जो हम डायलिसिस में निकालते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये एक लो मॉलिक्यूल और मिडल मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया. सो उसको निकालने के लिए हमें फिल्टर की जो साइज है, पोर साइज, उसको छोटी चाहिए. जो नॉर्मल डायलिसिस फिल्टर हम यूज कर सकते हैं, करते हैं, इसका पोर साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें मोर जिसका वॉल्यूम है, लेकिन मोर देन 15 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल्स को निकाला जाता है लाइक आईजीजी, आईजीएम, क्रायोग्लोबुलिन, लाइपोप्रोटीन्स. So larger molecule compared to the HD or HDF. So plasma half-life depend on whether it is long half-life or short half-life. For example, IgG will have a 21 days of half-life. So it will have to do it intermittently. For example, we'll have to give a gap of 1 or 2 days so that it can again accumulate and we can able to remove it. For example, some have short half-life, so IgM will have a short half-life, so we'll have to do daily rapid exchanges. So depending on the half-life, the prescription will change. So half-life will affect the plasma exchange. Molecular weight will affect the plasma exchange. Then volume of distribution, whether it is intravascular or extravascular, as the name itself suggests, the plasma exchange or plasmapheresis means it will remove the substance or antibody or immune complex from the plasma. That means from the vascular compartment. मतलब ब्लड वेसल के अंदर जो है वही वो रिमूव कर पाएंगे. जो चीज जैसे कि एक्स्ट्रा वास्कुलर है, जैसे कि स्प्लीन में है, लिवर में है, फैट में है, मसल्स में है, उसको वो नहीं निकाल पाएंगे. सो प्लाज्मा एक्सचेंज विल रिमूव द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और एंटीबॉडी ओनली व्हेन इट इज इन द इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट. मतलब जो वेसल्स के अंदर है तो वो रिमूव कर पाएगा. वेसल के बाहर है, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में है, जैसे कि फैट में है, तो वो उसको नहीं निकाल पाएगा. सो इंट्रावास्कुलर, मोर द इंट्रावास्कुलर, मोर इफेक्टिव द प्लाज्माफेरेसिस. देन रीएक्युमुलेशन. फॉर एग्जांपल, कुछ सम एंटीबॉडीज विल, आप अगर प्लाज्माफेरेसिस करके निकाल दो तो वो जो फैट में है, जो मसल में है, उसको वापस इंट्रावास्कुलर स्पेस में आने के लिए समय लगता है. सो दैट विल अगेन एक्युमुलेट. सो कुछ 2 या 3 बाद वो वापस उतना ही लेवल हो जाता है, तो उसको वापस एंटीबॉडीज करना पड़ता है. सो उसका रीएक्युमुलेशन रेट कैसा है, उसके ऊपर भी प्लाज्माफेरेसिस का प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड रहता है. अगेन प्लाज्मा फिल्ट्रेशन रेट्स एंड इट्स सीविंग कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, जब प्लाज्मा हम फिल्ट्रेट करते हैं, सो व्हेन वी फिल्ट्रेट द प्लाज्मा थ्रू प्लाज्मा फिल्टर, सो concentration of molecule in the filtrate versus upon the concentration of molecule in that plasma, मतलब वो कितना फिल्ट्रेट हो रहा है थ्रू दैट pore, it is called as sieving coefficient or plasma filtration. So plasma filter is basically a special filter with a large pore, 0.3 to 0.5. It is a much bigger pore than routine dialysis filter. So it will remove a bigger molecule. Bigger molecule means much more than molecular weight, having much more than urea and creatine, which is removed by routine dialysis, but not as much as RBC, WBC platelet, which is a much bigger molecule. So
it is more, molecular weight is more than urea and creatinine, but less than RBC, WBC, platelet. So that particular molecular weight protein is removed. So the filtration fraction is the how much rate, by how much rate we can remove that uh, molecule or antibody through the filters. So these are the common size. So these are some proteins like IgG, IgM, IgA, lipoprotein, cholesterol, fibrinogens, which can be removed by plasmapheresis. So that they have different properties, like how much the percentage is intravascular, what is the molecular weight, what is the concentration in the blood. For example, you can see IgG. Most commonly we remove IgG. For example, anti-GBM disease and cause we remove IgG. But IgG, you can see only 45% is intravascular. 55% of IgG is extravascular. So with one exchange of plasma, we will not be able to remove 100% of IgG. We'll have to give some time to again reaccumulate and again do plasmapheresis. So it's depend on its intravascular. More the intravascular volume, more effective the plasmapheresis. So in case of IgM, you can see the percentage of IgM. So percentage of intravascular volume is more, that is 78%. So in case of IgM, plasmapheresis is much more effective than IgG. So depending on half-life and molecular weight, we already discussed, it is the plasmapheresis prescription will vary. So half-life and distribution of different molecules removed by, these are some common molecule which is removed by plasmapheresis, we already discussed, and their half-life is also given. For example, as compared to the albumin, we can see IgG has 45% intravascular value and half-life is also more, 21. So you can compare IgG and IgM. IgM 80% intravascular value and half-life is only 5. So plasmapheresis will be more effective in case of IgM. So more the intravascular volume, more effective the plasma. So IgG, we will take a classic example of IgG. IgG remove with the plasma exchange. So one exchange of plasma, for example, one वॉल्यूम, आप अगर एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल 2 लीटर आता है प्लाज्मा वॉल्यूम इसका, अगर वो आप 2 लीटर प्लाज्मा वॉल्यूम उसका एक्सचेंज करते हो, अल्ब्यूमिन के साथ करो या प्लाज्मा के साथ करो, अगर आप एक्सचेंज कर सकते हो, तो 100% से वो 40% में आ जाता है एक एक्सचेंज के बाद में. लेकिन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू डेज में वो वापस 60% के आसपास में आ जाता है. फिर देन अगेन आप सेकंड प्लाज्माफेरेसिस करेंगे तो वापस वो 30% तक आ जाएगा. So in each plasmapheresis, the more and more that IgG will removed, but it again rebound to the new baselines. So we'll have to do a plasmapheresis such that we'll have to give time to reaccumulate that IgG. So for example, we'll have doing plasmapheresis first day, we'll have to give gap, 1 day gap to again reaccumulate that IgG, and then you can again remove that IgG in second plasmapheresis. So its prescription depend on which antibody you want to remove actually. Okay. So this is an example. For example, in one plasma exchange, 63.2% of IgG removed. In two plasma exchange, if you remove, for example, someone's plasma exchange is plasma volume is 2 liter. If you remove 4 liter, if you exchange 4 liter of plasma, so it will remove 86.5% of that antibody. In case of IgG, for example, in this case IgG, if you remove 3 volumes, for example, the one volume is 2 liter, 3 volume is 6 liter of plasma, you exchange that 6 liter plasma with albumin or albumin plus FFP, so 95% of that substance will be removed. So this is so now we have learned about what are the indications, how is the mechanism of action of plasmapheresis, and different terms used in the plasmapheresis. In the next video, we'll learn about what are the access used for plasmapheresis, what are the anticoagulations used in plasmapheresis, what are the different types of machine, different types of filter used in the plasmapheresis. So thank you very much. So here we complete the part 1 of plasmapheresis. Thank you. मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा. Thank you very much. We'll meet in the next video.